Namaskar, Sat Sri Akal, Assalamu Alaikum, Vadakkam, Jai Jineendra, and a very warm good afternoon to everyone present here. In our Indian tradition, it is said, Atithi Devo Bhava. The guest is equivalent to God. Today, I feel honored to welcome you all, respected parents, my dear juniors, and respected faculty members. Again, a very warm good afternoon. I am Komal Jain with my co-anchor. I am Chetra. Yes, your seniors. I feel extremely privileged to welcome all our respected parents and my dear juniors to this beautiful orientation program. Today is not just a beginning of an classroom. Today marks the beginning of a journey where goals slowly transform into goals, goals slowly transform into achievement. As someone rightly said, a journey of 1,000 miles begin with a single step. Congratulations, juniors. You have all taken that first step. First of all, a very heartfelt welcome to all the future civil servants. बच्चों reports तैयार है? To all the parents. Thank you for trusting us with your children's aspirations. As behind every successful civil servant, there is not just hard work, वो तो करना ही है, but along with that, an unwavering support of your family and your loved ones. To my juniors, congratulations. Congratulations, because choosing civil services is not just choosing a career. It's answering to call to lead, to serve, and to make decisions where your decisions will have power to build the nation. आप यहाँ सिर्फ एक कोर्स को ज्वाइन करने तो नहीं आए हैं, आप यहाँ आए हैं अपने अंदर के उस सिविल सर्वेंट को जगाने जो ज्ञान से विनम्र, जो विचारों से समृद्ध और जो सेवा से प्रेरित हो. Yes, the guiding class is guided by courage and wisdom, not by desire and appetite. Yes, today we are gathered here for as a part of the Tathastu ICS family. An institution has been built with a vision of creating not only UPSC aspirant but a strong and responsible individual. Tathastu ICS was founded by our all-time favorite Dr. Tanu Jain ma'am, which journey itself inspires a lot of students. Thank you, ma'am. Her vision has always been just beyond the books and syllabus. It has been about creating a learning environment where student receives mentorship, confidence, discipline required for the UPSC journey. Coming to the name Tathastu itself carries a beautiful meaning, as we know, so be it. And a reminder that when dreams are supported with action and confidence, possibilities become reality. Boom! Coming to today's program, this journey is unique because it combines academics with civil services preparation through 3-year BA program orientated with UPSC preparation. This is not only about preparing for an examination, it is about strongly building foundation. The UPSC journey requires understanding the syllabus of polity, economics, geography, current affairs, everything, etc., etc. The mainly understanding the people mind. And this program is designed to help students grow step by step with proper guidance and mentorship throughout these important years. Certainly, Chetra, I believe in my juniors. चलिए सफलता की बात तो हम बाद में करेंगे. पहले मैं आपको लेके चलती हूँ एक सुंदर सफर की तरफ. यूपीएससी की जर्नी. डर लगता है ना? ये जर्नी सिर्फ एग्जाम्स, लेक्चर्स और टीचर्स के डांट तक लिमिट तो नहीं है. ये जर्नी है उन दोस्तों की जो साथ खड़े थे हर मुश्किल सफर में. थैंक यू गाइस. और उन टीचर्स की जिन्होंने अपनी समझदारी से हर मुश्किल को आसान बनाया. थैंक यू सर, थैंक यू मैम. यहाँ पर कुछ डिस्कशंस होंगे, कभी हीटेड डिबेट्स भी होंगे और टेस्ट के बाद एनालाइज भी होगा. और यही सब तो वो चीजें हैं जो आपके जर्नी को मेमोरेबल बनाने वाली हैं. आपको पता है हमारे धीरज सर हमें क्या कह के बुलाते हैं? बच्चा पार्टी. एंड ट्रूली इट फील्स लाइक होम. आई प्रॉमिस दैट यू विल बी फीलिंग लाइक अ फैमिली. Along with that, I would like to share one of my personal experience. When I came here, I came with big dreams, but many doubts. My personal experience. When I came here, I came with many big dreams, but along with that, many doubts. Teachers जानते ही हैं. Am I capable enough?
Will I be able to compete? Will I be able to handle this journey? But under Tanu ma'am and her team's guidance, it changed me slowly and gradually. It taught me that UPSC is not limited to intelligence. It's about consistency, discipline, and willingness to change every day. The teachers here did not just teach me to these subjects, they teach me to learn myself better. I became more confident, more disciplined, and more aware of my own potential. And I truly hope that 1 year from now, when you will be looking back, you can feel the same transformation. Absolutely, Komal. Before we move ahead, I would like to suggest a few things which I learned from Tatastu. Stay consistent. You don't need to be perfect every day. Just keep moving ahead. That is enough. Then respect the process. Because UPSC is a marathon, it's not a sprint. Mostly, which I don't do, don't compare your journey with anyone else. Because as we know, everyone has their own lifetime, their own struggles, their own story to tell. So don't compare. And finally, enjoy this journey. Because after some times, we don't remember only the result. We remember the learnings we learned, the people we became. So always enjoy. Along with that, I would like to recite a beautiful Sanskrit shloka. उद्यमेन ही सध्यन्ते कार्याणि न मनोरथ न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा. That is, success is achieved through efforts, not just by wishes. Even a lion has to work to get its food. आपको पता है तनु मैम हमें हमेशा बोलती हैं अपने मरे बिना तो स्वर्ग भी नहीं है. Your dreams are important, but your dedication will lead your destination, guys. Yes, truly. We would like to end up with 2 cup of motivational quotes for you guys. रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा. थककर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा. दोस्तों, जर्नी थोड़ी लंबी है, थोड़ा सा और मोटिवेशन. सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो. कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो. जब तक सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम. संघर्षों का मैदान छोड़कर न भागो तुम. बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. Yes, in English we say the boat that calms the wave never get across, and the person who reads and days never been at loss. Yes, students, once again we warmly welcome all the students, parents, faculty members, and my dear guests. May this journey be filled with learning, growth, friendship, and success. Thank you. And now we hand over the stage to our co-anchors, Irpipa and Samta Jain. Jai Hind, Jai Bharat. Good afternoon, everyone. Every new beginning is made even more meaningful when it starts with the light of knowledge and wisdom. In Indian tradition, the ceremonial lighting of the lamp symbolizes the victory of light over darkness, knowledge over ignorance, and hope over despair. With this spirit, now we have the honor of inviting our respected founder and mentor, Dr. Tanujan ma'am, along with Abhishek sir, to kindly come forward and grace the stage for the lamp lighting ceremony. May I request everyone present in the audience to kindly raise as we begin with the lamp lighting ceremony. शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय
ma'am, and respected dignitaries, now I kindly request you to take your seats. मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। चलिए इसी नए हौसले के साथ आज के इस सफर की शुरुआत करते हैं। As the lamp has been lit, let us seek the blessings of Lord Ganesha, the remover of obstacles and the symbol of wisdom. Please welcome our talented performers Sarthak Bansal and Shiv Sudhanshu Verma for Ganesh Vandana with a huge round of applause. गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि शरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि दन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गणेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि श्रीगणेशाय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गणेशाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। गान चतुराय गान प्राणाय गानन्तरात्मने गानोत्सुखाय गानमत्ताय गानोत्सुखमनसे गुरुपूरिताय गुरुदेवताय गुरुविक्रमाय वीरप्रवराय गुरुवे गुरुवे गुरुदेव कलचित्रे गुरुपुत्र परिधात्रे गुरु पाखंड खंड खाया गीत साराय गीत तत्वाय गीत गोत्राय धीमहि घोरघोषाय मन्त्रमस्ताय भोजयाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि दन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गणेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि श्रीगणेशाय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गणेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। Applause to Shiv and Sarthak for the beautiful and divine Ganesh Vandana. It truly set a serene and positive tone for the event. With that beautiful beginning, we now move ahead the program. I'm Avni Chauhan. I'm Ritu Kanwar. Now, continuing with this auspicious beginning, we have a grateful performance lined up for you. Please put your hands together as we invite Ansuya on the stage for a welcoming dance. रंगी पर उड़ आवी खुशियों संगे लावी हर घाए हयो हाय शुभारंभ मंगल बेला आई सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई। हाँ सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर शेंदुराची कंठी सलके माल मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव
दर्शन मात्रे मना कामना पूर्ती जय देव जय देव देवा हो देवा गणेशा लंबोदर गणेशा ओम गं गणपते नमः जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की हाथों से तू बदल दे अपनी लकीरें, हाथों से तू बदल दे अपनी लकीरें। सच है जो संग तेरे तो डर से अब बढ़ जा। तो यारा हो तैयार ये जग है रण तेरा। तो यारा हो तैयार ये जग है रण तेरा। तो यारा हो तैयार ये जग है रण तेरा। तो यारा हो तैयार ये जग है रण तेरा। जिद पे आए तो कर जाए पर्वत पार। Wow, that was absolutely mesmerizing. Guys, your expressions, grace truly captivated everyone. Thank you for such a wonderful performance. Before we move ahead, let's take a moment to know the institution that will be your companion in your journey ahead. Let's give you the screen time that you all deserve, because after this, Tanu ma'am will be tracking it. As your senior, we all were sitting here just a year ago. So it is our responsibility to make you aware about our life and journey at the Tathastu, which reflects the vision, mission, and values that makes it more than just a coaching institute. Following this, here are glimpses of the vibrant environment and the culture that awaits you. So sit back, relax, and kindly pay attention to the screen.
We hope those glimpses have given you insight into the journey that lies ahead. To all future officers, nation builders,
and power takers. Welcome to the first step of your beautiful journey. There is a famous saying, a dream doesn't come true through magics. It takes determination, discipline, and right direction. And that is exactly what today's orientation session is about. It is not just inspiring you, but also giving you clarity and roadmap to begin your preparation with confidence. So, without any further delay, let's move ahead with our orientation session. It's my privilege to introduce someone whose journey is a true inspiration for every UPSC aspirant present here today. Our esteemed guest, Dr. Tanu Jain ma'am, is a former civil servant from 2015 batch of Armed Forces Headquarters Civil Services and founder and director of Tathastu ICS. She completed her Bachelor of Dental Surgery from Subharati College and successfully cleared the Civil Services examination in 2014. She went on to serve the nation for over 7.5 years in the Armed Force Headquarters, where she also worked as an assistant director at the Defense Research and Development Organization, which is famously known as DRDO, gaining valuable administrative and leadership experience. What makes her journey even more inspiring is that she began preparing for UPSC examination while pursuing her BDS degree. Since then, she remained deeply committed to mentoring aspirants and contributing to society through education and guidance. She teaches philosophy, ethics, and governance while mentoring students in personality development and life skills. After resigning from government services, she founded Tathastu ICS with the vision providing holistic education. Today, the institute not only prepares students for civil services examination, but also offers undergraduate and postgraduate programs with the mission of nurturing individuals of strong character who are dedicated to their families, society, and the nation. Her inspiring journey, unwavering dedication, and commitment to empower future civil servants have made her one of the most reputed mentors in UPSC community. So, ladies and gentlemen, please join me in extending a heartfelt and warm welcome to Dr. Tanu Jain ma'am with a Hello. Hello. Am I audible at the last? सभी को सादर प्रणाम. जय हिंद. आवाज थोड़ी हल्की आ रही है. जय हिंद. आज आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद. बच्चों, आप तो यहीं रहेंगे. जो जाएंगे वो पेरेंट्स हैं. पेरेंट्स, आप में से कितने बच्चे घर से आएंगे? ओके. कितने बच्चे यहीं रहेंगे? यहाँ पे ओल्ड राजेंद्र नगर में रहेंगे? ओके. जो सिविल सर्विसेज की जर्नी है ना, थोड़ी लंबी है, लेकिन जब हम उसे ग्रेजुएशन के साथ करते हैं तो बहुत छोटी है, क्योंकि ग्रेजुएशन तो हमें करना ही था. ये नहीं तो कुछ और, कुछ और नहीं तो कुछ और. एक ग्रेजुएशन की डिग्री तो हमें चाहिए ही थी. अक्सर ग्रेजुएशन में बच्चे क्या करते हैं? मौज मस्ती इधर उधर. मौज मस्ती तो यहाँ पे भी होती है, लेकिन थोड़ी डायरेक्टेड. बच्चे यहाँ पे पब या बार जाने की जगह पार्लियामेंट चले जाते हैं. जाते तो यहाँ पे भी हैं. वो रैंडम चीजें करने की बजाय सिवाय सिर्फ मॉल घूमने के वो पॉलिटी की बातें कर लेते हैं, इकोनॉमी की बातें कर लेते हैं, वो देश के मुद्दों पे बातें करते हैं. वो सिर्फ ये नहीं कहते कि ईरान यूएस में युद्ध हो रहा है, वो सिर्फ ये नहीं कहते कि एक लड़ाई चल रही है. वो उसकी इंट्रिकेसीज को समझते हैं कि क्यों चल रही है, इसमें भारत के लिए क्या नुकसान है, क्या फायदा है, क्या हमें करना चाहिए. तो ये जो 3 साल का समय था, जो ग्रेजुएशन में आपके साथ के जो बच्चे होंगे, बहुत सारे लाखों बच्चे करते हैं ग्रेजुएशन, तो वो जो लाखों बच्चे जो ग्रेजुएशन करते हैं, वो उस समय पे जो अपना समय पढ़ाई करते हैं 10%, लेकिन 90% समय कहाँ जाता है? तफरी में, इधर उधर में वेस्ट हो जाता है अक्सर. लेकिन वो वाला समय जो 90% समय है, वो आप
उसमें से 80% 90% समय आप यहीं पे पढ़ाई करेंगे, और वो जो आप पढ़ाई करेंगे उससे आपका दिमाग खुलेगा। क्योंकि जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो कितने तरीके के इतिहास यहाँ पे पेरेंट्स को पता है? कितने तरीके के? 3, मॉडर्न, एंशंट, मिडीवल या मॉडर्न। लेकिन हमारे बच्चे 3 और पढ़ते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंट भी पढ़ते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ते हैं। उसी तरह जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो कोई लॉयर बनता है तो वो अपनी ग्रेजुएशन में एलएलबी कर रहा होता है, बीए एलएलबी, तो 5 साल में कॉन्स्टिट्यूशन सीख जाता है। लेकिन हमारा बच्चा 3 साल में वो भी सीख जाता है, केस लॉज भी सीख जाता है, वो इकोनॉमी भी सीख जाता है। इकोनॉमी भी अच्छे से सीख जाता है कि जब वो न्यूज़पेपर पढ़ता है तो वो स्टॉक्स को समझ पाता है कि स्टॉक्स अलग चीज़ होती है और म्यूचुअल फंड्स अलग चीज़ होती है। वो ये समझ पाता है कि बैंक्स ने अपने रेट गिराए हैं तो इकोनॉमी पे क्या असर पड़ने वाला है, उसे कुछ फायदा होगा या नहीं। निर्मला सीतारमन मैम जब अपना बजट देती हैं तो बाकी बच्चे जब ये देख रहे होते हैं कि पता नहीं कौन क्या बोल रहा है, चैनल चेंज करो। उस वक्त हमारे बच्चे जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, अभी उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया नहीं है, कर रहे होंगे, कर रहे हैं, वो बच्चे ध्यान से निर्मला सीतारमन मैम को सुन रहे होते हैं कि देश की पॉलिसी में आखिर कौन कौन से बदलाव हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ का टैक्स गिर गया या एजुकेशन पे टैक्स कम हो गया या ज्यादा हो गया, क्या फर्क पड़ेगा? लग्जरी कार पे अगर टैक्स बढ़ा है तो इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा? जहां दूसरे बच्चे शायद के पॉप के सिंगर्स को कंपेयर कर रहे हो, मुझे नहीं पता आजकल क्या क्या चल रहा है, मैं बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हूँ क्योंकि मैं पढ़े लिखे बच्चों में रहती हूँ। तो लेकिन हाँ, मुझे कभी कभी सुनने को मिल जाता है कि कुछ ऐसा कुछ चल रहा है, कुछ कोरियन वोरियन टाइप की सीरीज वगैरह का भी कुछ चल रहा है, मतलब मुझे नहीं पता क्या क्या चल रहा है, लेकिन कुछ चल रहा है। जहाँ वो बच्चे वो सब कर रहे होते हैं, यहाँ हमारे बच्चे बड़ी चिंता में होते हैं कि देश में क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है, कौन सा नया लॉ आ गया। अभी रिसेंटली एक लॉ आया जहाँ पे महिलाओं को घर के कामकाज, जिस कामकाज को आज तक कभी कोई वैल्यू नहीं दी गई थी, उस काम की एक वैल्यू सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स करी एक केस में। उसके बाद जो बच्चे आए उन्होंने बोला मैम क्या ये रेट जो उन्होंने गवर्नमेंट ने फिक्स किया, क्या ये सही है? आप उनकी चिंता देख रहे हैं? उनकी चिंता ये नहीं है कि कल को वो ड्रेस कौन सी पहने, वो एक बड़े लेवल पे सोच पा रहे हैं। फिर यही बच्चे जब इंटर्नशिप्स के लिए जाते हैं, अलग अलग इंटर्नशिप्स होती हैं तथास्तु में, जैसे एमपी लीड फेलोशिप में अभी हमारे बच्चे गए हुए हैं, तो वो वाइस प्रेसिडेंट से मिले, पीयूष गोयल जी से कल ही मिलकर आए, मिनिस्टर साहब से, और भी अलग अलग जगह जाते हैं, पीएम मोदी सर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए। उसी तरह संकल्प के हमारे जो बच्चे हैं, एमपी लीड संकल्प के बच्चे हैं, वो अपराजिता मैम एक एमपी हैं उड़ीसा की, उनके साथ पार्लियामेंट के क्वेश्चंस बना रहे हैं, पार्लियामेंट में पूछे जाने वाले सवालों को वो बना रहे हैं उनके साथ बैठ के। उसी तरह कुछ बच्चे एसिड जो सर्वाइवर्स हैं उनके साथ इंटर्नशिप करके सर्टिफिकेट्स ले रहे हैं, कुछ कटकथा फाउंडेशन के साथ ले रहे हैं। तो कुछ ऐसी एक्सपोजर्स उन्हें मिलते हैं कि जिससे उनका दिमाग खुलता है और ये 3 साल में वो व्यक्ति बन जाते हैं जो यूपीएससी तो क्लियर कर ही सकते हैं, लेकिन इसके बियॉन्ड भी उनमें वो लीडरशिप स्किल्स आ जाते हैं जो उनको जीवन में सफलता पाने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि 3 साल में पढ़ा तो हम देते ही हैं, पढ़ाने की कोई दुविधा नहीं होती, बहुत लंबा समय होता है 3 साल। बच्चे पढ़ते हैं, शुरुआत में एनसीईआरटीज़ ख़त्म करते हैं अच्छे से, इससे उनका एक बैकग्राउंड सेट हो जाता है। फिर साथ साथ उनके सब्जेक्ट्स शुरू हो जाते हैं। सेकेंड ईयर में मेजर सब्जेक्ट्स ख़त्म हो जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। सेकेंड ईयर से आंसर राइटिंग की शुरुआत शुरू हो जाती है और तीसरे साल में वो सारे सब्जेक्ट्स ख़त्म करके सिर्फ प्रैक्टिस वाले मोड में आ जाते हैं, जहाँ पे ऑफिसर्स खुद, जैसे कि मैंने ऑफिसर बनने के बाद रिज़ाइन किया, हमारे साथ अभिषेक सर हैं, सर ने आईपीएस क्लियर किया,
उसी तरह सागर सर हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे फ्रेंड्स हैं जो फैमिली ही हैं एक्चुअली, तथास्तु की ही फैमिली है। वो आंसर राइटिंग करवाते हैं बच्चों को ताकि वो उस लेवल पे आ सके जहाँ पे वो एग्जाम क्लियर कर सके। तो हम सबका मकसद सबसे पहला क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? यूपीएससी तो क्लियर करना है, साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बनना है, क्योंकि बुरा इंसान बुरा ऑफिसर बनता है, वो मुझे बनाना नहीं। मुझे कैसा बनाना है ऑफिसर? अच्छा। तो अच्छे ऑफिसर बनने के लिए आपको अच्छा इंसान भी साथ साथ बनना होगा। आपको वो कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, अपने आप को डिस्ट्रैक्शन फ्री रखना होगा। आज के जमाने में सफलता ज्यादा मुश्किल है कि आसान है? बस ये बात बता दो। किस किस को लगता है कि आज के जमाने में सफलता आसान है? हाँ, और किस किस को लगता है कि मुश्किल है? बस जिन्होंने हाथ उठाया है वो फोन के मारे हैं। जो इंसान फोन में रहेगा, फोन पे ज्यादा समय बिताएगा या डिस्ट्रैक्टेड होता जाएगा। डिस्ट्रैक्टेड मतलब किसी ने कुछ कहा तुरंत, अच्छा ये नई किताब आई है, ये पढ़ने से होता है। या कोई एक वीडियो देख लेने के बाद जो व्यक्ति कहता है अच्छा ये करना था, और तुरंत अपना रास्ता बदल लेता है, उस बच्चे का ना तो सिलेक्शन होता है और ना ही वो किसी भी राह पे पहुंच पाता है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। हरिवंश राय बच्चन ने कहा है, राह पकड़ तू एक चला चल। एक राह पकड़ो और उस पे कंसिस्टेंटली अगर आप चलते जाओगे, आप अपनी राह पा जाओगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चले कि मुझे कन्याकुमारी से कश्मीर जाना है, लेकिन बीच में कोई बोले अरे तूने दिल्ली नहीं देखा, अच्छा हैदराबाद नहीं देखा, ले हैदराबाद भी देख ले, और हैदराबाद के लिए मुड़ा। फिर किसी ने कहा अरे गुजरात के फाफड़े खाखड़े नहीं खा के देखे, फिर वो गुजरात चला जाए, तो क्या वो अपने लक्ष्य तक सही समय पे पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि स्मार्ट लोगों का सिलेक्शन होता है, ओवर स्मार्ट का नहीं होता। ओवर स्मार्ट मतलब मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी चालूं, ये भी हमने बहुत मेहनत करके प्लान करा है, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं इस प्लानिंग में। आपका काम क्या है? आपका काम सिर्फ इतना है कि जो डेली हो रहा है क्लास में, आप उसे शिद्दत के साथ पढ़ते जाएं, बिल्कुल उसी शिद्दत के साथ पढ़ते जाएं, याद करते जाएं। क्योंकि बाकी सब हम कर सकते हैं, हम नोट्स बना के दे सकते हैं, क्लास करवा सकते हैं, डाउट सेशन करवा सकते हैं, मेंटोर दे सकते हैं, आप आंसर लिख दोगे तो चेक कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। लेकिन एक काम जो हम नहीं कर सकते वो क्या है? क्या नहीं कर सकते हम? अरे बोलो, आपके बेटे का याद नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके बेटे का एग्जाम जाके दे दें, आपके बेटे के आंसर्स लिख दें। ये किसको करना पड़ेगा? ये आपको खुद करना पड़ेगा। कृष्ण ने भी अर्जुन को ज्ञान दिया था कि बेटा तीर चलाना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। तो हम आपको ये बता सकते हैं कि युद्ध करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन तीर किसे चलाना पड़ा? किसने चलाया? युद्ध किसने किया? अर्जुन नहीं किया ना, क्योंकि अर्जुन के बदले कृष्ण युद्ध नहीं कर सकते। तो युद्ध आपको ही करना है, पढ़ाई आपको ही करनी है। आपको रथ मिल जाएगा, तीर मिल जाएगा, तीर कमान मिल जाएगा, कृष्ण मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, लेकिन अर्जुन आपको ही बनना पड़ेगा। ये एक वो जीवन का सत्य है जिसे अगर आप पहचान ले तो पूरा महाभारत आसान है। नहीं तो इंसान सवाल ही पूछता रह जाता है कि ये सही नहीं है, ये अच्छा है, ये बुरा है, क्या करूं क्या करूं। कुछ नहीं, सिंपल फॉर्मूला है,
जो प्रोग्राम है उसे फॉलो करना है, उसमें कहीं आपकी चूक नहीं होनी चाहिए, आपको उससे ऑनेस्ट रहना है। हम भी ऑनेस्ट रहेंगे, आप भी ऑनेस्ट रहेंगे, पाथ एकदम क्लियर है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन करना जरूरी है। मैं सब बच्चों को अपना नंबर दे के रखती हूँ, कोई भी बच्चा मुझे कभी भी मैसेज कर सकता है, फालतू मैसेज नहीं, गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली, हैप्पी बर्थडे, ये सब कुछ नहीं। लेकिन अदरवाइज सब बच्चों के पास मेरा नंबर रहता है, कोई भी बच्चा मुझे कभी भी कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है। एक ही फ़ोन है मेरे पास, अभी कहाँ है पता नहीं, लेकिन हाँ ये रहा, एक ही फ़ोन है और हर वक्त ऑन रहता है, कभी ऑफ नहीं होता। ठीक है, तो कोई अर्जेंट बात है, कुछ भी बात है, आप लोग कुछ बच्चे जो दिल्ली में रह रहे हैं, कुछ भी हो, वी आर ऑलवेज हेयर, ऑलवेज, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको अपने बेटे की ऑनेस्टी रखनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, डन। और पेरेंट्स, बच्चे बहुत समझदार हैं आपके, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। मैंने ऐसे बहुत पेरेंट्स देखे हैं और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं जिनके पास सब कुछ है, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स भी हैं, कहीं बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं कहीं, कि मैम सब कुछ है पर बच्चा पढ़ा दो किसी तरह, लेकिन उनका बच्चा पढ़ने को तैयार नहीं है। तो ये बहुत अच्छे कर्म है आपके कि आपका बच्चा पढ़ना चाहता है, कुछ बनना चाहता है। सो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। लेकिन आप भी बच्चों पे कोई फालतू प्रेशर नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे ना? पक्का? श्योर? डेली डेली तो नहीं पूछेंगे क्या किया, हो जाएगा ना सेलेक्ट? ये नहीं करना, क्योंकि एग्जाम में किसी को कुछ नहीं पता होता। कई बार हम सब अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप पेरेंट्स अपने बच्चों को जो ऑलरेडी अभी आपसे दूर रह रहे हैं, आप उन पे किसी तरीके का प्रेशर बनाएं। बच्चा पढ़ेगा, आपके पास रिपोर्ट्स रेगुलर आती रहेंगी, मेंटोर से आप कनेक्टेड रहेंगे, आप हर चीज कर सकते हैं, बस बच्चों पे प्रेशर नहीं डाल सकते, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी समझदार हैं, है ना? पता है ना ये बात? मम्मी पापा हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आपका जीवन डिसाइड नहीं कर सकते। अगर आपके पेट में दर्द हुआ तो क्या मम्मी पापा दवाई तो दे सकते हैं, लेकिन दर्द किसके होगा? आप ही के होगा ना? तो समझदारी से काम लेना है। जीवन में आप बनोगे, ऑफिसर आप बनोगे, तो किसकी लाइफ सेट होगी? सम्मान किसे मिलेगा? सैलरी किसके अकाउंट में आएगी? आपके में आएगी ना? आराम आप किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। तो ओनरशिप लेके पढ़ाई करनी है, एकदम ओनरशिप लेके, किसी और के लिए नहीं, किसी और चीज के लिए नहीं, अपने आप को प्रूव करने के लिए और अपनी जीवन को अच्छा करने के लिए आपको पढ़ाई करनी है। ओके, डन, डील? डील? रेज योर हैंड्स इफ इट्स अ डील। इफ इट्स अ डील, डील, राइट? पेरेंट्स को नहीं कहना पड़ना चाहिए कि पेरेंट्स क्या कहेंगे पढ़ने को? हम नर्सरी में थोड़े ना है कि पेरेंट्स कहेंगे तो हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे अपनी मर्जी से। किसके लिए? अपने लिए, कि मुझे वो सम्मान चाहिए, वो सर्विस करनी है देश की। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना जो इंतजार कर रहे होंगे कि आप एक दिन बनेंगे, और उन्हें शायद कुछ ऐसी लड़कियां होंगी जो सोच रही होंगी कि उन्हें रेस्क्यू किया जाएगा स्लम एरियाज से, है ना, ट्रैफिक एरियाज से। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें बॉन्डेड लेबर से बचाना होगा, वो इंतजार कर रहे होंगे कि कब ऐसा कोई ऑफिसर आए जो सही वक्त पे एक्शन लेके अच्छा ऑफिसर हो और हमें बचाए। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप में से किसी का भी मोटिव देश सेवा नहीं है तो आज ही विड्रॉ कर लेना, क्योंकि मुझे अच्छे बच्चे ही चाहिए जो अच्छे ऑफिसर्स बनके देश की सेवा करें। अगर आपका इंटेंशन इसके अलावा कुछ भी है तो आप विड्रॉ करने के लिए फ्री हैं।
और अगर कोई डिसिप्लिन के बाहर बहुत ज्यादा लेफ्ट राइट होता है तो हम उसे खुद से निकाल देते हैं। ये बात सब पेरेंट्स को मैं आज ही बता दूं, उसके बाद मेरे पास कोई पेरेंट ये कहते हुए नहीं आए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। लेकिन अगर बच्चा डिसिप्लिन में नहीं रहता तो हमें ये कुछ स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। एक दो बच्चों के साथ ही उठाए हैं, लेकिन हाँ उठाए हैं, क्योंकि हम लोगों का पूरा मोटिव क्लियर है कि अच्छे ऑफिसर्स बने, देश की सेवा करें। और जब कोई ऑफिसर कहीं जाके बोले कि मैं तथास्तु से पढ़ा हूं, तो ये बात एकदम क्लियर हो जाए कि ये एकदम सही ऑफिसर होगा, ये लेफ्ट राइट बात नहीं करेगा। तो वो एक छवि हमारी बननी चाहिए। इसी के लिए हम भी मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करना और साथ में मेहनत करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू Tanujan ma'am, for your truly inspiring and insightful words. The experiences, guidance, and life lessons you shared today have not only motivated us for the examination, but have also inspired us to become responsible individuals committed to serving society and the nation. On behalf of everyone present here, I extend our heartfelt gratitude for taking out your valuable time to be with us today. We are truly honored by your presence and deeply thankful for your encouragement. Ladies and gentlemen, one more big round of applause for Dr. Tanujan ma'am. Thank you. So it is now my privilege to invite someone whose journey truly reflects perseverance, excellence, and an unwavering commitment to public service. Mr. Abhishek Singh sir is a civil servant with an exceptional academic background, holding a BTech in computer science and engineering, an LLB, and a master in anthropology. His UPSC journey is nothing short of inspiring. He has cleared the civil services exam and secured the distinction of being highest overall scorer in general studies paper 2, as well as the one of the highest overall scorer in mains 2021. As a senior faculty for science and technology at the Tathastu ICS, he is admired for his ability to simplify complex concepts, connect technology with governance and current affairs, and guide aspirants with an exam-oriented approach. Sir, your journey continues to inspire countless aspirants, as we are truly honored to have you with us today. May I now please request Mr. Abhishek Singh sir to kindly forward and address the gathering. So please give a huge round of applause for Mr. Abhishek Singh sir. कैसे हैं आप लोग? 2-2:30 बज गए, भूख लगी होगी। और हम में से कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि उनके साथ कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम रहती है? और हाथ उठाओ, उठने चाहिए। ताकत कम है, खाना कम खाते हो। और जैसा कि मैम ने बताया कि that we want कि that the student of ours should be honest and should serve the country. And how this thing will come when you will be knowing yourself. जब आपको पता होगा अपने बारे में, तभी आप ऐसा कर पाओगे। बेईमानी, करप्शन, ये सब कहाँ से आता है कि मैं इतना पैसा एक्युमुलेट कर लूं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये वो लोग करते हैं जिनको दरअसल सच्चाई नहीं पता है। तो आपको क्या पता है आपके बारे में, या फिर आपके प्लेनेट अर्थ के बारे में, या फिर आपके सोलर सिस्टम के बारे में, या फिर इसके बाहर क्या है? एक बार एक फोटो ली गई हमारे 7वें 8वें प्लेनेट के आसपास से, नेपच्यून से। उस पे फोटो आई अर्थ की एक पॉइंट जितनी, और उस अर्थ में तुम 5 फीट के व्यक्ति हो जो वहां से दिखोगे भी नहीं। और इस पैसे को एक्युमुलेट करके करोगे क्या? जब तुम्हें ये सत्य पता होगा ना, तो करप्शन हमेशा दिमाग से दूर ही भागेगा। फिर ज्यादा टाइम ना लेते हुए एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब यहाँ पे आप सीखोगे तो हमें सब्जेक्ट के साथ कुछ चीजें और सीखनी है। जैसे कितने लोग मेट्रो से आए हैं आज?
जब हम मेट्रो में घुसे, और स्पेशली बच्चे सीखेंगे, जब मेट्रो में घुसे तो मेट्रो में घुसते हुए हमने देखा कि एक लड़की खड़ी है, एक लड़की का स्टैचू है नमस्ते करते हुए। आखिर वो स्टैचू क्यों है, उसका कारण क्या है? वहां लड़का भी तो हो सकता था, किसी और पोस्चर में भी तो खड़ी हो सकती थी। तो ये चीजें हम सोचेंगे, सीखेंगे, और इसी सोचने का नाम है सफलता। जैसा मैम ने बोला कि 3 साल की जर्नी है, और 3 साल में हमें हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है, और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता के लिए आपको रोज मेहनत करनी होती है। कई बार हमें जोश आता है कि आज मैं 10 घंटे पढ़ जाऊंगा, आज मैं 15 घंटे पढ़ जाऊंगा। 3 दिन 10 घंटे पढ़ते हो, फिर चौथे दिन बीमार हो जाते हो, 5वें दिन पढ़ने का मन नहीं करता है। सफलता आती है कंसिस्टेंसी के साथ, परसिवरेंस के साथ। जब तुम लगातार रोज ये काम करोगे, जिस दिन मन नहीं है उस दिन भी काम करोगे, इसको बोलते हैं जज्बा। और जज्बा रखने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे यहाँ नहीं भेजा है प्रिपरेशन करने के लिए, बल्कि मैं खुद आया हूं यहाँ प्रिपरेशन करने के लिए। और जिस दिन तुम्हें ये लगे कि आज मेरा मन नहीं है पढ़ने का, आज मेहनत करने का मन नहीं है, दोस्तों के साथ घूम लेता हूं, तो उस दिन तुम अपनी जिंदगी के 2 सबसे प्यारे इंसानों के बारे में सोचना कि अगर तुम असफल हुए तो उन्हें कैसा महसूस होगा, और अगर तुम सफल हुए तो उनकी आंखों में कैसी चमक होगी। हमें यह सोचना चाहिए उस दिन, जिस दिन हमारा मन नहीं है पढ़ने का, और जिस दिन तुम ये सोच लोगे अपने माँ बाप की आंखों की चमक के बारे में, वो ख्याल ही तुम्हारे दिल से चला जाएगा। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है जब आप यहाँ पे रहोगे, पढ़ोगे, और जब ये चीज ध्यान रहेगी तो अपने आप पढ़ने का मन होगा। और इसको बोलते हैं इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, कि बाहर का कोई व्यक्ति, तनु मैम या मैं या कोई टीचर आपको नहीं बोल रहा है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कोई धक्का नहीं दे रहा है, बल्कि खुद पढ़ रहे हो, खुद मैडम के पास जा रहे हो, मैडम मेरी ये समस्या है, इसको सॉल्व करें, मैडम मेरा ये उत्तर लिखा है मैंने, इसको आप इवेल्युएट कराएं, और अच्छे से इवेल्युएट कराएं। और जिस दिन आप ये करने लगोगे उस दिन एक अच्छे व्यक्ति तो बन ही जाओगे। यूपीएससी क्लियर करना या फिर आईएएस बनना, आईपीएस बनना इज नॉट अ वेरी बिग टास्क, क्योंकि आप आईएएस बन जाओगे तो आपसे बड़ा कोई होगा, उससे भी बड़ा कोई होगा। इट इज नॉट द एंड ऑफ द जर्नी। बस हमें ये क्लियर करना है सो दैट कि हम अपने समाज को सर्व कर पाए, अपने देश को सर्व कर पाए। आपने कभी देखा है रोड पे सोते हुए एक व्यक्ति को, जो रोड पे सो रहा है, क्यों रोड पे सो रहा है? का शौक है? शायद आप ऑफिसर बन के कोई एक ऐसी पॉलिसी ला पाए कि उसको एक घर मिल जाए, वो मजबूरी में रोड पे सो रहा है। कोई पॉलिसी उस तक नहीं पहुंच पाई, हो सकता है आप में से कोई एक चीज सॉल्व कर दें। फिर एक सवाल उठता है, 70 साल हो गए देश को आजाद हुए, हम आज तक क्यों नहीं सॉल्व कर पाए इन चीजों को, गरीबी क्यों नहीं हटा पाए? तो एक ऑफिसर के लिए एक सबसे बड़ी चीज ये होती है, जो कि आज के बाद कुछ दिन बाद आप बनोगे, 100 समस्याओं को नहीं सॉल्व करना है, एक बड़ी समस्या को उठा के उसको सॉल्व करना है, फिर अगले दिन फिर एक नई समस्या को सॉल्व करना है। एंड जब ये प्रोसेस होगा तब देश आगे बढ़ेगा। और हर चीज पे देश को दोष देने की बजाय हमें ये सोचना होता है कोई देश परफेक्ट नहीं होता, उस देश को हमें परफेक्ट बनाना होता है। रोज रोज मेहनत करके, रोज अपने आप में एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करके, तभी वो देश परफेक्ट बनता है। और ये सब चीजें आप सीखोगे, मैडम आपको एथिक्स पढ़ाएंगी, और एथिक्स में क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी, और धीरे धीरे आप सीखोगे। हो सकता है मेरी कुछ बातें कम समझ आ रही हो, कुछ लोग हो सकता है फोन चला रहे हो, जैसे मैडम ने बोला कि अब फोन कम चलाना है, तो फोन कम क्यों चलाना है? कोई उत्तर है आपके पास? कितने लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम पे रील चलाते हैं? मैं चलाता हूं, आप चलाते हैं? कितनी देर?
3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे? अच्छा ठीक। कितनी देर आप 2 घंटे का लेक्चर देखते हैं यूट्यूब पे? मूवी नहीं, आई एम नॉट सेइंग अबाउट द मूवी, आई एम सेइंग अबाउट सम लेक्चर बाय विच यू कैन लर्न समथिंग। अब इंस्टाग्राम में भी कुछ काम की चीजें आ रही हैं, लेकिन मैडम मना क्यों कर रही हैं? एक स्टडी हुई, उस स्टडी में यह पाया गया कि भारत का यूथ अपना 25% जीवन सोशल मीडिया पे बिता रहा है। तो इससे समस्या क्या है? आइंस्टाइन का नाम सबने सुना होगा। आइंस्टाइन ने कहा था कि दैट इफ यू कैन नॉट इमेजिन देन यू कैन नॉट इनोवेट। और इमेजिनेशन के लिए कंसंट्रेशन चाहिए होता है। और जब तुम इंस्टाग्राम की रील देखते हो 30 सेकंड की, 1 मिनट की, तो आपका कंसंट्रेशन स्पैम कम होता रहता है, कम होता रहता है। आप एक रील पे नहीं रुक पा रहे हो, 60 सेकंड से कम हो गया आपका कंसंट्रेशन स्पैन। और जब कुछ इनोवेट करना है तो उसके लिए तो दिनों दिन तक सोचना पड़ेगा। फिर आप सोचोगे अब मुझे क्या इनोवेट करना है, मैं कौन सा साइंटिस्ट बनना हूं, मैं तो यहां सिविल सर्वेंट बनने आया हूं। तो सर, यू आर सोशल साइंटिस्ट, यू आर गोइंग टू इनोवेट द सॉल्यूशन ऑफ द न्यू प्रॉब्लम विच हैव नॉट बीन सॉल्व्ड टिल द डेट। A scientist is not only that person वो साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कुछ इनोवेट कर दे। तुम भी साइंटिस्ट हो, तुम उस समस्या का सॉल्यूशन इनोवेट करोगे, और उस समस्या का सॉल्यूशन इनोवेट करने के लिए तुम्हारी इमेजिनेशन पावर बहुत ज्यादा होनी चाहिए। और इसी वजह से तुमको पता है चाइना ने अपने यहां सोशल मीडिया बच्चों के लिए आधे घंटे से ज्यादा के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया। और देखो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है चाइना का एग्जाम्पल देने में या यूएसए का एग्जाम्पल देने में। हाँ, मेरा भारत महान, मैं मानता हूं, लेकिन हम किसी से अगर कुछ अच्छा सीख सकें तो हम जरूर सीखेंगे। अच्छा क्या सीखना है? क्यों उसने, चाइना ने आधे घंटे तक लिमिट कर दिया? उसको पता है कि अगर आई कैन नॉट इनोवेट, आई कैन नॉट रूल द वर्ल्ड। अगर उसका यूथ जो आने वाला है वो सोच नहीं पा रहा है, इमेजिन नहीं कर पा रहा है, तो वो वर्ल्ड लीडर नहीं बन पाएगा। और अगर वर्ल्ड लीडर बनना है तो हमारे यूथ को सोचना होगा। और हमारा यूथ सोचेगा कैसे? जब उसका कंसंट्रेशन स्पैन ज्यादा होगा। और ये इस सफलता में आपके लिए बहुत मदद करेगा, इस 3 साल की जर्नी में आपके लिए बहुत मदद करेगा। नहीं तो क्लासेस बोरिंग हो जाएंगी, सब्जेक्ट लेंदी हो जाएंगे। और हमें ना क्लासेस को बोरिंग करना है, ना ही सब्जेक्ट को लेंदी करना है, इसको एंजॉय करना है। वी शुड एंजॉय द प्रोसेस सो दैट जो 2 आपके सबसे प्यारे व्यक्ति हैं, 3 साल बाद तुम उनकी आंखों में एक अच्छी सी चमक देख पाओ। और उसी लिए तो हम हैं यहाँ पे। खुद की खुशी से ज्यादा खुशी होती है कि जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी सफलता पे जब उनका सीना फक्र से चौड़ा हो जाए, वो होती है असली खुशी। तो क्या तुम वो खुशी अपने माँ बाप को देना चाहते हो? बड़ा साइलेंस है, प्यार नहीं करते? थोड़ा तेज बोलो, ताकत लगा के, और तेज। गुड। थोड़ी आवाज में दम रखो, क्योंकि यू आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट सिविल सर्वेंट्स। तुम्हारी आवाज कमरे में सुनाई देनी चाहिए, फुसफुसाना नहीं है, डरना नहीं है। और डर किससे रहे हो? बगल वाला ये सोचेगा या फिर बगल वाला वो सोचेगा? बगल वाला बेटा 10 मिनट के बाद कुछ नहीं सोचेगा। बगल वाला भी अपने काम में बिजी है, सब अपनी लाइफ में इतना बिजी है, कोई तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोच रहा है। और यही मैं तो जब लेक्चर लेता हूं तब मैं सिखाता हूं बच्चों को कि तुम्हें बोलना है, तुम्हें बोलना सीखना है। गॉन आर द डेज व्हेन यू आर इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट रहोगे तो इंटरव्यू में क्या बोलोगे? मैं तो इंट्रोवर्ट हूं सर, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। वहां तो बोलना पड़ेगा ना, इंटरव्यू तो देना है ना हमें। तो हमें सीखनी है ये चीजें, अपनी बातों को एक्सप्रेस करना कॉपी में और जुबान के थ्रू, और मेहनत
रोज करनी है। रोज मेहनत करोगे तो सफलता अपने आप मिलेगी। हाँ, किसी को जल्दी मिल जाती है, किसी को थोड़ा देर से मिलती है। और मैम की बात करें, मैम ने खुद मुझे गाइड किया कि कैसे आंसर्स को बेहतर किया जाए। तो आई थिंक मैम इज कैपेबल इनफ। और मेरे अलावा बहुत सारे और बच्चों को, हाँ मैम से थोड़ा सा जूनियर हूं मैं, थोड़ा सा नहीं काफी जूनियर हूं मैं, तो मैम ने कई चीजें बताई कि इस चीज को ऐसे सही किया जाता है, इस चीज को ऐसे सही किया जाता है, और उस वजह से मुझे भी सक्सेस मिली। तो सीधे चलते, हाँ जी मैम, तो सीधे चलते रहो, जैसा गाइड किया जा रहा है वैसे पढ़ते रहो और ट्रस्ट रखो मैम के ऊपर। नथिंग विल गो रॉन्ग। एम आई क्लियर? भूख लगी तुम लोगों को? अरे कभी कभी लगेगी भूख, इट डजंट मैटर। क्या 2 घंटे भूखे नहीं रह सकते हो? रह सकते हो ना, अपने सपनों के लिए, अपनी उम्मीदों के लिए और अपने माँ बाप के लिए और सबसे बढ़कर इस देश के लिए रह सकते हो ना भूखे? तो ये बेहतर है। और जिसको जिसको एक समस्या होती है, बस एक कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद खत्म करता हूं। बहुत सारे बच्चों को ये समस्या होती है कि सर मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता हूं। एक समस्या होती है, मैं लगातार नहीं पढ़ पाता हूं। कई बार ये चीज आ जाती है, कई बार वो चीज आ जाती है, तो मेरी प्रिपरेशन कमजोर पड़ जाती है। तो एक कहानी सुनाता हूं 2-3 मिनट की। अरस्तु का नाम सुना है? अंग्रेजी में एरिस्टोटल बोलते हैं, हिंदी में उन्हीं को अरस्तु बोलते हैं। तो अरस्तु महाराज बूढ़े हो गए थे, बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे। एक मेरे जैसा व्यक्ति पहुंचा, अभिषेक सिंह पहुंचे अरस्तु जी महाराज के पास। अभिषेक सिंह ने बोला कि सर मुझे ज्ञान दो, मैं कोई भी काम सही तरह से कर नहीं पाता हूं, मैं भटक जाता हूं। तो अरस्तु जी महाराज ने बोला ठीक है, मैं ज्ञान दूंगा। एक काम करो, मेरे साथ रहो। 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए। अब वो बूढ़े थे तो उस व्यक्ति को लग रहा है ये बुढ़ाऊ ज्ञान तो देंगे नहीं, काम कराते रहते हैं, सेवा कराते रहते हैं, ज्ञान नहीं दे रहे हैं। अब एक दिन अगस्त का महीना, अरस्तु जी महाराज जा रहे थे, नदी क्रॉस करनी थी, तो नदी में उतरे, मैं भी नदी में उतरा। अब क्या हुआ, अरस्तु जी महाराज ने ड्रामा किया डूबने का। मैं गया, मुझे लगा बचा लूं। अब अरस्तु जी महाराज ने मेरा सर पकड़ा और जब नदी में घुसा दिया। जब नदी में घुसा दिया मेरा सर, तब मैं शिद्दत से केवल एक चीज सोच रहा था, और तुम होते तो क्या सोच रहे होते? क्या सोच रहा था मैं? कि मैं किसी तरह से बच जाऊं। जब मैं निकला बाहर, पहले तो मैंने सोचा कि यार इस व्यक्ति ने मुझे मारने की कोशिश की। तभी अरस्तु जी महाराज ने कहा, कुछ समझ आया कैसे काम करना है पूरी शिद्दत के साथ। जब हमें यह पता हो कि मुझे ये करना ही करना है, तब कोई इफ, बट और नो नहीं होता है। चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थोड़ी देर सुना आपने मुझे, और शायद कुछ इसका इस्तेमाल कर पाएंगे बच्चे हमारे। Respected Abhishek sir, thank you so much for your inspiring words. Your speech was truly motivating and full of valuable lessons for all of us. We learned a lot from your experiences and guidance today. Your journey as an IPS officer encourages us to work hard and stay focused. You have given a new perspective and great motivation for our future. We are really grateful for your time and presence here. It was an honor to listen to you, sir. Now, I request everyone to give a huge round of applause for Abhishek sir. Thank you once again, sir. Now, it's time for our respected Tanu ma'am and Abhishek sir to leave. So please say them thank you and give a huge round of applause for their time, valuable interaction. Thank you, ma'am. Thank you, sir.
for introducing you all to your academic teams. Please, sir. Good afternoon, everybody. My name is Rishi, and I am responsible for managing the Delhi Center. काफी आपको ब्रीफिंग ऑलरेडी दे चुके हैं लोग, मैं उसमें और कुछ पाइलअप नहीं करूंगा. स्लोली एंड स्टेडली वी आर गोइंग टू बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप विद ईच अदर. एक सक्सेसफुल जर्नी के लिए ये जरूरी है कि हम सब एक दूसरे पे ट्रस्ट करें. एज स्टूडेंट्स आपका हमारे मेंटर्स पे, हमारे फैकल्टीज पे ट्रस्ट रहे, ताकि वो जो डिलीवर करना चाहते हैं आप उसको सही तरीके से ग्रहण कर पाए. बिना ज्यादा टाइम लिए मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा हमारी एकेडमिक टीम. एकेडमिक टीम में एक चेन ऑफ कमांड हमने बनाया हुआ है. जब किसी भी लेवल पे किसी स्टूडेंट को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम, डाउट, क्वेरी कुछ भी आता है तो बच्चा भटके ना, और इस वजह से एक चेन ऑफ हायरार्की, एक कमांड बना रखा है ताकि बच्चे को ये मालूम रहे कि सबसे पहले किसको अप्रोच करना है. तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, फॉर देम टू नो एंड टू सी द फेसेस, सबके साथ एक बार परिचय हो जाए. मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करूंगा शिवानी मैम को. शिवानी मैम हमारे दिल्ली सेंटर में स्टूडेंट बडी हैं. स्टूडेंट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कोई डाउट, क्वेरी है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा किसी भी स्टूडेंट के लिए वो शिवानी मैम रहेंगी. थैंक यू मैम. सेकेंड लेवल, आपके स्केड्यूलिंग, आपका नोट्स, आपके मटेरियल्स, जितना भी आपको कंटेंट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, क्लासेस रिलेटेड क्वेरी है, तो इसके लिए हमारे पास, मैं मनीषा मैम को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा. मनीषा मैम हमारे लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा पिलर की तरह काम करती हैं कि स्टूडेंट हैज फेल्ट अ लॉट ऑफ लव फॉर मनीषा मैम, कि कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले हम मनीषा मैम के पास जाते हैं. ठीक, थैंक यू मैम. जब कभी भी कोई एकेडमिक क्वेरी आती है तो हर बैच को हमने एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड यूपीएससी प्रेप्ड जिन्होंने अटेम्प्ट्स दिए हैं मेंटर एलोकेट किया हुआ है. मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा बलनीत सर को. बलनीत सर प्रारंभ 4 के मेंटर रहेंगे, प्लस आप ये तालियों की गूंज से समझ पा रहे हैं कि बलनीत सर की कितनी फैन फॉलोइंग है. ये फैन फॉलोइंग इनकी मेंटरशिप की वजह से नहीं है, ये फैन फॉलोइंग है इनकी पॉलिटी और आईआर की कमांड पे. तो जितना अच्छा सर पॉलिटी पढ़ाएंगे, जो मैम ने यहां पे खड़े होकर बोला है कि हमारे बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन आता है, उसकी नींव किसने रखी है? बलनीत सर ने. थैंक यू सर. तो ये हमारा एक चेन ऑफ हायरार्की रहेगा कि सबसे पहले लेवल पे शिवानी मैम, मनीषा मैम, एकेडमिक डाउट्स के लिए हमारे पास मेंटर हैं बलनीत सर. इसके अलावा अगर आपको कुछ भी और सेंटर, कभी भी आपको लग रहा है कि बलनीत सर अवेलेबल नहीं है, मनीषा मैम अवेलेबल नहीं है, मैं एज ऋषि सर दिल्ली सेंटर को मैनेज करने के लिए यहां पे अवेलेबल रहूंगा. कभी किसी कारणवश आपको लगे कि मैं, ऋषि सर नहीं यहां पे अवेलेबल हैं, जो काफी मुश्किल है, मेरे सीनियर और पूरे तथास्तु के एकेडमिक हेड जिन्होंने पूरा एकेडमिक डिजाइन बनाया है, मिस्टर धीरज सर, वो आज हमारे साथ अवेलेबल नहीं है. आपका पूरा एकेडमिक डिजाइन विद
कंसिडरेशन कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, आपको यूपीएससी के लिए प्रिपेयर किया जाए, वो सब धीरज सर के अंडर होता है। और कभी बिल्कुल ही लेस देन 1% चांस कि कभी धीरज सर भी अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो जैसे कि तनु मैम आपके साथ ऑलरेडी बता चुकी हैं, उनका नंबर आपके साथ शेयर रहेगा, आप तनु मैम को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एक चेन ऑफ हायरार्की हमारे पास ऑलरेडी एस्टैब्लिश है, ताकि हम ये इंश्योर कर पाए कि बच्चा कभी भी भटके ना। इसके अलावा मैं चाहूंगा कि हमारी फैकल्टीज जो आपको पढ़ाएंगी, जो सबसे पहले आपके साथ मिलने वाले हैं, सबसे पहले हम उनको इंट्रोड्यूस कर दें। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा उमंग मैम को। मिस उमंग मैम आपको साइंस एंड एनवायरनमेंट के बेसिक्स प्लस आपकी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जब भी बलनीत सर अवेलेबल नहीं होंगे तो उमंग मैम आपके पास रहेंगी आपके एकेडमिक डाउट्स रिजॉल्व करने के लिए। थैंक यू मैम। नेक्स्ट मैं चाहूंगा अपनी इकोनॉमिक्स फैकल्टी को इंट्रोड्यूस करना, मिस त्रिज्या मैम। त्रिज्या मैम आपको इकोनॉमी से स्टार्ट करवाएंगी, जिसमें जब मैम ने ये बोला है कि हमारे बच्चे निर्मला सीतारमन मैम की बजट को एनालाइज करते हैं, हमारे यहां पे बजट को एनालाइज करना कौन सिखाता है और कौन दिखाता है दुनिया को? मिस त्रिज्या मैम। थैंक यू मैम। नेक्स्ट, इस समाज से परिचय करवाने के लिए, ये समाज बहुत ही कभी किसी जमाने में दर्दनाक हो जाता है, उस समाज से परिचय कराने के लिए, हमारी सोसाइटी को पढ़ाने के लिए दिव्या मैम को बुलाना चाहूंगा। दिव्या मैम आपके पास सोसाइटी पढ़ाएंगी आपको, प्लस जब कभी आपको ये समझ में आएगा कि एक ऑप्शनल कोई चीज होती है, उस ऑप्शनल में सोशियोलॉजी कोई चीज होती है, तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल भी मैम के अंडर चलेगा। थैंक यू मैम। इस पूरे तथास्तु को फिजिकली हम चलाते हैं, लेकिन इस पूरे तथास्तु में वर्चुअली जब कभी भी आप छुट्टी पे हैं और आपको आपकी क्लासेस अटेंड करनी है, वर्चुअली अगर आप देखना चाहते हैं, घर बैठे रिमोट से अगर आपको कोई पहुंचा पा रहा है आप तक कंटेंट या आपकी क्लासेस, तो हमने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, हमने एक इनहेरेंट ऐप तथास्तु LMS ऐप डेवलप की हुई है, जिसके पूरे ब्रेन चाइल्ड, जिसको पूरा संभालने के लिए हमारे पास हमारे टेक्निकल इंचार्ज मिस्टर सूरज सर हैं। मिस्टर सूरज सर वो इंसान हैं जो कभी भी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपके ऐप में, आपके लर्निंग में वो कभी बाधा नहीं बनने देंगे कि कभी आप अगर क्लास में नहीं आ पाए हैं और आपको घर से अगर क्लास लेनी है, हम नहीं चाहेंगे कि आप घर से क्लास लें, हम नहीं चाहेंगे कि हम सूरज सर को कोई काम दें, लेकिन कभी ऐसा कोई मौका आता है जब आपको घर से क्लास लेनी पड़ रही है, तो सूरज सर ही वो इंसान है जो आपके उस गैप को फिल करेंगे। थैंक यू सर। मैं बुलाना चाहूंगा नेक्स्ट मिस्टर रमन को। इस पूरे सेंटर में पढ़ाई का रिकॉर्ड होना जरूरी है। पढ़ाई हो रही है, आपके जहन तक पढ़ाई जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब आपके पेरेंट्स हर महीने हमसे ये पूछेंगे, हमारे बलनीत सर को ये तकलीफ देंगे कि हमारा बच्चा आया या नहीं आया, तो उसकी जिम्मेदारी रमन सर की है कि रमन सर ये बताएंगे कि वो बच्चे ने अटेंडेंस रिकॉर्ड करवाई है या नहीं। तो इस सेंटर पे जो भी बच्चा प्रारंभ 4 का आ रहा है, वो अपनी अटेंडेंस सबसे पहले कहां रिकॉर्ड करवा रहा है? थैंक यू सर। मैं इससे ज्यादा और टाइम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि हम सबको भी भूख भी लग रही है, लेकिन
एक बात सिर्फ, इस पूरे इंस्टीट्यूट में, इस सेंटर में जब कभी जहां भी आप फंसे, मैं स्टूडेंट से बात कर रहा हूं, पेरेंट्स से नहीं, जब कभी भी कोई स्टूडेंट कहीं भी फंस रहा है, एकेडमिकली नॉन एकेडमिकली, ये मत सोचेगा कि आपके पास आपको हेल्प करने वाला कोई नहीं है। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम सबके नंबर शेयर होंगे, सब फिजिकली प्रेजेंट होंगे, आप कांटेक्ट कीजिए। और अगर वहां से रिस्पॉन्स या रिप्लाई नहीं आया, मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि वो आपकी क्वेरी सॉल्व होगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य रह गया है हमारी टीम में, मैं आरती मैम को इनवाइट करना चाहूंगा। आरती मैम इस हायरार्की में वो दर्जा रखती हैं जहां पे कभी भी आपको किसी से किसी भी इंक्वायरी, किसी भी कोर्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको पूछनी है, आपको अटेंडेंस रिगार्डिंग कोई अपनी क्वेरी सॉल्व करवानी है कि रमन सर से कोई अटेंडेंस रह गई, आपको टेस्ट्स रिगार्डिंग, आपके डेली टेस्ट होंगे, आपके वीकली टेस्ट होंगे, इन टेस्ट रिगार्डिंग कोई क्वेरी आपको रेज करनी है तो आरती मैम आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेंगी। थैंक यू मैम। अब हमारे पास बहुत से लोग रह गए हैं, लेकिन हमारी ये टीम हमेशा आपके लिए सदैव तैयार है। फॉर यू, विथ यू ऑलवेज, दिल्ली पुलिस। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। तो अब हम अपने कार्यक्रम के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसा हम सब जानते हैं, एवरी एंड इज अ न्यू बिगनिंग। आज का ये समापन किसी चीज का अंत नहीं, बल्कि हमारे प्रारंभ 4 बैच की एक नई शुरुआत है। Looking back at today's program, it all began with the ceremonial lamp lighting, symbolizing an auspicious beginning. As the program unfolded, we witnessed meaningful interaction, caught glimpses of life at Tathastu. Every segment was thoughtfully planned to make this beginning a little more familiar and a lot more meaningful for all of you. And I think it's safe to say today wasn't just about introducing an institute, it was about introducing a journey that will demand dedication, discipline, and consistency, but one that also promises learning, growth, and countless opportunities along the way. किसी भी सफल कार्यक्रम के पीछे कई लोगों का हाथ होता है। आज उसी कार्यक्रम में बहुत लोगों की मेहनत लगी है और वो एक सुंदर उदाहरण रहा है। As we now move towards the conclusion of today's program, I would like to take a moment to express my heartfelt gratitude. A special note of thanks to our director Tanu ma'am and the entire Tathastu faculty for creating a space where dreams are taken seriously and every aspirant is inspired to pursue excellence. As we conclude today's program, remember that every successful civil servant once stood exactly where you are, with dreams, determination, and the courage to begin. On the behalf of entire Tathastu family, I once again extend a heartfelt welcome to the Prarambh 4 batch. Thank you everyone. Jai Hind, Jai Bharat. Students, parents, एज यूजुअल बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। इस पूरे कार्यक्रम को सफलतापूर्वक खत्म करने के लिए सबसे पहले, जैसे कि हमारे बच्चों ने बताया, तनु मैम, धीरज सर और बनी सर का तो हाथ है ही, साथ ही मैं चाहूंगा उन सभी बिहाइंड द सीन्स काम करने वाले लोगों को भी अप्रिशिएट करना, जिसकी वजह से ये सब कुछ संभव नहीं हो पाता। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा मिस्टर अंकित सर, मिस्टर मुकुल सर, ज्योति दीदी, संजय भैया, सौरभ सर, रजत सर, ये सब वो अहम कंपोनेंट्स हैं हमारे तथास्तु के, जिनकी वजह से आपकी क्लासरूम सेंटर फंक्शन नहीं कर सकता। हम चाहते हैं कि जिस प्यार से, जिस परिवार पूर्वक हमने
इस सेंटर को बनाया है, उसी परिवार में हम आपको अब शामिल करने वाले हैं। जैसे तनु मैम ने बोला है, परिवार के सदस्यों के साथ हम प्यार भी करते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो नाराजगी भी जाहिर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का ये समारोह समाप्त करता हूं। और हमने एज प्लान्ड आप सबके लिए रिफ्रेशमेंट्स भी रेडी कर रखी हैं। ज्योति दीदी और संजय भैया रिफ्रेशमेंट्स हैंडल करेंगे। विद दिस नोट आई एंड दिस सेरेमनी टुडे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। प्रारंभ 3 एक बार यहां पे रुक जाएगा, बाकी सब प्रारंभ 4 को हम प्रारंभ 4 के स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को पहले रिफ्रेशमेंट्स हम सर्व करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।